की हड्डी व गर्दन को बिल्कुल सीधी रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। अनुभव करेंगे अंगूठे से लेकर सिर तक प्रत्येक भाग स्थिर वह शिथिल हो रहा है। कहीं पर भी कोई हलन चलन नहीं। बिल्कुल स्थिरता। अंगूठे से लेकर सिर तक के प्रत्येक भाग को स्थिर व शिथिल करेंगे। दो तीन लंबे गहरे श्वास के साथ प्रयोग को संपन्न करेंगे। लंबा श्वास लेंगे। लंबा श्वास छोड़ेंगे। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम। अब आगे का कार्यक्रम मधुमिता जी करवा रहे हैं। वंदना नमस्ते शम्मी जी। जय जिनेंद्र एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को सूचना मिली थी कि आज वी आर हैविंग अ कहूट बेस्ड क्विज ऑन पांचवे और छठे बोल पर प्राण और पर्याप्ति। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। Let me just show this, share my screen right now. Okay, can everybody see this screen, Kahoot screen? Yes. Yeah. Okay, so I guess आप लोगों ने सभी ने पहले ही खेला है. Most of you have. So इस पे on Zoom you will be seeing the questions and Kahoot अगर आपके पास app downloaded है in your second device तो आप उसमें ये 8418215 पिन डाल सकते हैं और अगर नहीं है तो you can go to this website www.kahoot.it and वहां पर आप ये गेम पिन डाल सकते हैं. It looks like all of you know what to do. So we already have 15 players who have signed in. So जैसा कि मैंने बताया quiz is on 5th and 6th बोल प्राण और पर्याप्ति और quiz में 20 questions हैं, 20 questions. Some questions have 20 seconds time limit and most questions have 20 seconds time limit and a couple of questions have 30 seconds. And you have to answer as quickly as you can and of course correctly in order to get maximum points. So today I think in Zoom we have about 40 people who had registered when I checked last. So I hope कि ये हमारे registrations for the quiz will go up to 40. So more people are joining in. If anybody is having any trouble, you can probably write on chat and our host will try to help you. Okay, so we have a contestant with a nickname Paryapti. They have made up their mind to win today. So let's see. And then we have Jay Mahapragya, excellent choices. हेलो मधुमिता जी. हाँ. वो रूपल के कंप्यूटर में जो है फोन में उसमें से गेम कैसे चालू होगा? फोन पे आप www.kahoot.it पे जाइए. वो तो एक में है किया, दूसरे में क्या करने का?
हाँ, तो फिर ये आप पिन नंबर डालिए 8418215। मैंने कपूट में डाल दिया, लेकिन रूपल के फोन में क्या करने का? जूम में रहने, वो तो जूम में थी नहीं ना। नहीं, आपको एक तीसरा डिवाइस चाहिए। जूम जिस डिवाइस पे है उस पे कुछ नहीं करना है, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। ओके और ओके। रूपल जी को एक और डिवाइस चाहिए खेलने के लिए। दूसरा दिवस आया, दूसरा दिवस आ गया। ओके। हाँ, so then you can do the same thing that you did. So we'll wait for another minute for everybody to join. We have one choice, Atma, one Atma, Moksh. Then we have Pran, Paryapti, ABC, and Jay Mahapragya. So, it is going to be a very close contest, looks like. So may the best, the strongest person win. And we are all learners after all. So we are all learning through the process. So maybe we can start now. Oh, I see that there are some questions. Okay, somebody wants us to wait a couple of minutes. Okay, so we'll wait another minute. Okay, so we have 22 players so far. I think Sonit Ji was trying to join. Not sure if he's been able to yet. All right, the number of players is not changing anymore. So let us begin. So again, may the best person win. Hello. हाँ, hello. बोलिए. (23) हाँ, सोनी जी आप कुछ कह रहे हैं? Have you joined yet? Okay, so 24. No. Not yet? Okay, so we have 24 players so far. Yeah. Suniji, as soon as you're able to join, let us know. Okay. So not sure why some people Okay, I think we are going to begin and whoever wants to join can join as the game proceeds. So let's begin. So here comes the first question. पर्याप्ति किसे कहते हैं? जन्म के समय जो पौद्गलिक शक्ति का निर्माण होता है, जन्म के समय जो जीवनी शक्ति का निर्माण होता है, मृत्यु के समय जो पौद्गलिक शक्ति का समापन होता है, या मृत्यु के समय जो जीवनी शक्ति का समापन होता है। 8 more seconds to go. Hurry up. Okay. Quickly, one. All right. Okay, very good. I think almost everybody got to answer. And the answer was, जन्म के समय जो पौद्गलिक शक्ति का निर्माण होता है, उसे पर्याप्ति कहते हैं. And 17 of you got it correctly.
Moving on, next question. Okay, so we have S&P at the top with 947 points. Let's move on. Next question. पर्याप्ति के कितने भेद हैं? 4, 6, 8 या 10? Looks like everybody is answering very quickly. Few more seconds left. All right. So the correct answer was 6 पर्याप्तियां, और 20 लोगों ने सही आंसर दिया है. Very good. Moving on. Number 3. निम्नलिखित में से क्या किसी पर्याप्ति का नाम नहीं है? आहार, इंद्रिय, आयुष्य या श्वासोच्छ्वास? नहीं है. 7 seconds to go. All right, and 16 लोगों ने सही जवाब दिया आयुष्य. आयुष्य किसी पर्याप्ति का नाम नहीं है. S&P is maintaining their lead. Moving on. Number 4. पर्याप्ति कौन से कर्म के उदय से मिलती है? आयुष्य, गोत्र, वेदनीय या नाम? 10 सेकेंड. All right. Correct answer was पर्याप्ति नाम कर्म के उदय से मिलती है, और 11 लोगों ने सही जवाब दिया है. आगे बढ़ते हैं. नंबर 5. समूर्छ मनुष्यों में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती हैं? 2.5, 3.5, 4 या 6? 5 सेकेंड. ऑलराइट, और सही जवाब है 3.5 पर्याप्तियां, और 13 लोगों ने सही जवाब दिए. आगे चलते हैं. और कल्पना जी ने अब लीड ले ली है with 5375 points. Next question. Number 6. राजा श्रेणिक के वर्तमान भव के जीव में कितनी पर्याप्तियां हैं? 3, 4, 5 या 6? सभी बहुत जल्दी जवाब दे रहे हैं. और टाइम अप. सही आंसर है 16, और सही आंसर है 6, और 16 लोगों ने सही जवाब दिए हैं. राजा श्रेणिक अपने वर्तमान भव में, जैसा कि शमनी जी ने बहुत बार बताया हमको, नरक में है, और नारकियों के 6 पर्याप्तियां होती हैं. आगे चलते हैं. और कल्पना जी लीड मेंटेन कर रही हैं, और केजे इज एट नंबर 2nd पोजीशन. आगे चलते हैं. वैमानिक देवों में कितनी पर्याप्तियां पाई जाती हैं? 3, 4, 5 या 6? बहुत जल्दी आ रहे हैं जवाब. ऑलराइट, द करेक्ट आंसर वाज 5 पर्याप्तियां, और 10 लोगों ने सही जवाब दिए हैं. तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, जैसा कि शमनी जी ने बताया था. देवताओं में भाषा और मन दोनों साथ ही होते हैं, एक ही होते हैं, तो इसके लिए उनके 5 पर्याप्तियां मानी जाती हैं. आगे चलते हैं. कल्पना जी लीड मेंटेन कर रही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 8. राम के वर्तमान के जीव में कितनी पर्याप्तियां हैं? 0, 3, 5 या 6? बहुत फास्ट आ रहे हैं आंसर्स. ऑलराइट, और 16 लोगों ने सही जवाब दिया है. राम के वर्तमान जीव में राम मोक्ष में है,
और सिद्धों में कोई भी पर्याप्ति नहीं होती, 0। तो लगता है सभी लोग बहुत अच्छा ध्यान लगा के शमली जी को सुनते हैं स्वाध्याय में। तो आगे चलते हैं। कल्पना जी लीड मेंटेन कर रही हैं, बट केजे वापस नंबर 2 पे। अगला प्रश्न 9, संगी मनुष्य का जीव कब पर्याप्त बनता है? गर्भ धारण के समय, जन्म के समय, वयस्क अवस्था में या मृत्यु के समय? वेरी गुड, द आंसर वाज गर्भ धारण के समय या एट कंसेप्शन, और 13 लोगों ने सही जवाब दिया है। आगे चलते हैं। 10, किस आहार की समाप्ति आयुष्य की समाप्ति है? रोम, ओज, कवल या नवल? दस सेकेंड। The correct answer is ओज आहार, और 16 लोगों ने सही जवाब दिया है। ओज पहला आहार है जो जीव लेता है अगले जन्म में, और उसके समाप्त होने पर मृत्यु हो जाती है। कल्पना जी अभी भी मेंटेन कर रही है लीड, बट मोक्ष अब नंबर 2 पे है। देखते हैं ये मोक्ष ऊपर तक पहुंच पाते हैं कि नहीं, और पर्याप्ति भी नंबर 4 पे है। आगे चलते हैं। जीव की जीवनी शक्ति के कितने भेद हैं? 6, 8, 10 या 12? 5 सेकेंड। सही जवाब है 10। जीवनी शक्ति का दूसरा नाम प्राण है, और जैसा कि हम जानते हैं 10 प्राण हैं। 13 लोगों ने सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। कल्पना जी अभी भी लीड में, मोक्ष क्लोज सेकंड, और पर्याप्ति अभी भी नंबर 4 पे है। एसएनपी और केजे भी बोर्ड में है। आगे चलते हैं। 12, निम्नलिखित में से क्या प्राण के भेद नहीं है? श्रुत, चक्षु, घ्राण, रसन, स्पर्श इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काया बल, श्वासोच्छ्वास, आयुष्य या आहार, शरीर, भाषा? दस सेकेंड। ये 30 सेकेंड का प्रश्न था, और लोग 20 सेकेंड में ही आंसर देने के लिए यूज्ड टू हो गए हैं। तो सही 15 लोगों ने सही जवाब दिया। आहार, शरीर और भाषा ये प्राण के भेद नहीं है। आगे चलते हैं। कल्पना जी अभी भी लीड में, मोक्ष नंबर 2, पर्याप्ति थोड़ा सा नीचे चले गए नंबर 5 पे, और केजे एंड एसएनपी आगे बढ़े। आगे चलते हैं। नंबर 13, प्राण क्या है? जीव, पुद्गल, धर्मास्तिकाय या अधर्मास्तिकाय? बहुत जल्दी आ रहे हैं जवाब। सही जवाब है जीव। प्राण जीवनी शक्ति है या जीव है? 18 लोगों ने सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। कल्पना जी अभी भी लीड में, लेकिन मोक्ष और अब बोर्ड पे एक नया चेहरा प्राण का आ रहा है। आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स, पर्याप्ति के सहारे ही प्राण की सक्रियता है, ट्रू या फॉल्स? एक्सीलेंट, ट्रू इज द करेक्ट आंसर। पर्याप्ति के सहारे ही प्राण की सक्रियता है, ये सही है, और 22 लोगों ने सही आंसर दिया। आगे चलते हैं। कल्पना जी स्टिल इन द लीड। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 15, आयुष्य प्राण का संबंध किस पर्याप्ति से है? आयुष्य, आहार, शरीर या श्वासोच्छ्वास? और सही आंसर है आहार। 7 लोगों ने सही आंसर दिया। आयुष्य प्राण नहीं होता, आयुष्य प्राण होता है बट आयुष्य पर्याप्ति नहीं होती। आहार पर्याप्ति का सीधा संबंध आयुष्य प्राण से है। आगे चलते हैं। कल्पना जी अभी भी लीड पे, बट केजे नंबर 2 पे, मोक्ष, किरण और आत्मा ये सारे लीडर बोर्ड में हैं। आगे चलते हैं। प्राण किस धर्म के क्षयोपशम से मिलता है? किस कर्म के? अंतराय, मोहनीय, नाम या आयुष्य? और सही जवाब है अंतराय, और 5 लोगों ने सही जवाब दिया। आगे चलते हैं, देखें लीडर बोर्ड में कुछ चेंज हुआ क्या। तो मोक्ष आगे बढ़ गए, आत्मा अभी भी लीडर बोर्ड में है बट लीड अभी भी कल्पना जी के पास। नेक्स्ट 17, ट्रू या फॉल्स? प्राण सभी जीवों में पाया जाता है। ट्रू या फॉल्स? बहुत जल्दी जवाब आ रहे हैं। और सही जवाब था फॉल्स, क्योंकि ये सिद्धों की अपेक्षा से है। संसारी जीवों में सभी में प्राण पाया जाता है, सही बात है, लेकिन सिद्ध जीवों में प्राण नहीं पाया जाता, तो उस अपेक्षा से प्राण सभी जीवों में नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं। कुछ भी चेंज नहीं है स्कोर बोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष्क देवों के विमानों में कितने प्राण पाए जाते हैं? 0, 3, 4 या 5? 5 सेकेंड। और सही आंसर था 4, और 4 लोगों ने ही इसको सही उत्तर दिया इसका। तो ज्योतिष देवों के विमान पृथ्वी का एकेंद्रीय जीवों से बने होते हैं और उनमें 4 प्राण पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। स्कोर बोर्ड में कोई चेंज नहीं है बट कल्पना जी अभी भी लीड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस जीव में सबसे कम प्राण पाए जाते हैं? निगोद, समूढ़ मनुष्य, सहयोगी केवली या अयोगी केवली? 5 सेकेंड। सही उत्तर है अयोगी केवली, जिसमें सिर्फ एक आयुष्य प्राण होता है, बाकी और कोई भी प्राण नहीं होते। तो 6 लोगों ने सही जवाब दिया। आगे चलते हैं। लीडर बोर्ड में केजे आगे आ रही हैं, कल्पना जी का अभी भी लीड है। मोक्ष, आत्मा और किरण साथ में है लीडर बोर्ड में। और अब अंतिम प्रश्न, ट्रू और फॉल्स? जीव के 10 में से किसी भी प्राण का अतिपात प्राणातिपात हिंसा है। ट्रू या फॉल्स? सही या गलत? और सही जवाब था सही या ट्रू, और 18 लोगों ने इसका सही जवाब दिया। तो चलते हैं। तो दिस वाज द एंड ऑफ द क्विज। चलते हैं, देखते हैं रिजल्ट। नंबर 3 पे किरण, नंबर 2 पे मोक्ष, एंड नंबर 1 पे
Kalpana. Excellent. Congratulations to all the winners. And number 4 पे KJ, number 5 पे आत्मा है. Congratulations to all the winners. आप अपना मोक्ष और किरण अपना लास्ट नेम, और मतलब किरण जी अपना लास्ट नेम बता सकते हैं और मोक्ष अपना आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं हमको. एंड आई होप, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द प्लेयर्स. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. और कृतज्ञोस्मि टू शम्नी जी. और अगर कुछ भी गलतियां रह गई हो तो खमत खामना मिच्छामि दुक्कडम. थैंक यू. मोक्ष प्रफुल्ल जैन. Congratulations. धन्यवाद. थैंक यू मधुमिता जी. अच्छा क्विज था. Thank you. किरण नाहटा. Congratulations किरण जी. थैंक यू. और मधुमिता जी को हमारी तरफ से धन्यवाद. हाँ, अभी किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो अपना प्रश्न आप रख सकते हैं. तो वंदना में जैसे एक क्वेश्चन था कि अपने जो 6 खंड है तो उसमें जाना पॉसिबल है क्या हर एक में, कि कैसे होता है? मतलब नहीं 6 खंड कौन में जा सकता? मरने के बाद भले जाए, इस शरीर से 6 खंड में जाना. और वैसे जितना अपन जान रहे हैं, चाहे अपन देश विदेश जितना भी जो कह रहे हैं, ये सारा की सारा एक खंड में आ जाता है. तो नहीं तो बाकी 5 खंडों में जा ही नहीं सकते ना इस करंट. हाँ. अच्छा, तो फिर ऊपर लाइक यू नो और एक, सॉरी मेरा दूसरा भी सवाल था, मैं 1-2 मिनट बाद पूछता हूँ. एक क्वेश्चन सभी का रॉन्ग था. मधुमिता जी, डू यू रिमेम्बर दैट वन क्वेश्चन? हाँ, वो क्वेश्चन ये था कि प्राण सभी जीवों में होता है क्या. तो उसको सिद्ध भगवान की अपेक्षा से, क्योंकि वो भी जीव हैं, संसारी जीवों में सब में प्राण होता है, लेकिन सिद्ध भगवान में वो भी जीव हैं बट उनमें प्राण नहीं होता. तो वो शम्नी जी अगर एक्सप्लेन थोड़ा सा करेंगे तो. हाँ, तो प्रश्न क्या है आप लोगों का? शम्नी जी, सिद्धों में प्राण या पर्याप्ति नहीं होते. जब बता प्राण नहीं होता तो जीव भी नहीं है. ठीक नहीं, यहाँ प्राण और पर्याप्ति को एक चीज समझेंगे आप लोग. प्राण और पर्याप्ति का आपस में संबंध है. कैसे संबंध है? पर्याप्ति है 6, प्राण है 10. तो प्राण कहाँ कहाँ एक्टिव होता है? जहाँ जहाँ पर्याप्ति है. प्राण के बिना पर्याप्ति पंगु है और पर्याप्ति के बिना प्राण पंगु है. जैसे श्रोतेंद्रिय अपने 5 इंद्रिय, पहले प्राण का नाम लगभग सब जानते होंगे. श्रोतेंद्रिय प्राण, चक्षुरेंद्रिय प्राण, घ्राणेंद्रिय प्राण, रसनेंद्रिय प्राण, स्पर्शनेंद्रिय प्राण. ये जो 5 प्राण है, ये 5 इंद्रिय प्राण है. तो 5 इंद्रिय प्राण उधर हम पर्याप्ति में देखें तो इंद्रिय पर्याप्ति. उसके बाद चले हम स्पर्शनेंद्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल, काय बल. तो मन पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और आयुष. एक मिनट, 6 पर्याप्तियों के नाम: आहार, शरीर, इंद्रिय, मन. हाँ, आहार पर्याप्ति का संबंध काय के साथ है, आयुष्य के साथ है. आहार शरीर का संबंध काय के साथ है. शरीर पर्याप्ति या काय बल प्राण. आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास का संबंध
श्वासोच्छ्वास प्राण के साथ है, भाषा का संबंध वचन प्राण के साथ है, और मन का संबंध मन प्राण के साथ है। मैं बात ये बता रही हूँ कि जहाँ जहाँ पर्याप्ति होंगे वहीं वहीं प्राण एक्टिव होंगे। तो प्राण और पर्याप्ति, तो पर्याप्ति है वो पौद्गलिक शक्ति है और प्राण है वो जीवनी शक्ति है। तो प्राण के बिना पर्याप्ति नहीं होगा, पर्याप्ति के बिना प्राण नहीं होगा। तो इसीलिए सिद्धों में पर्याप्ति भी नहीं है, प्राण भी नहीं है। तो प्राण यहाँ हम शक्ति विशेष को ले रहे हैं, आत्मा को नहीं ले रहे। शमीदी बंदामी नमन सामी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आहारक शरीर जो होता है वो जन्म से तो होता नहीं है, और फिर उसमें पर्याप्ति कैसे है? क्योंकि उसमें उसमें आता कि आहारक शरीर वालों की पहली पर्याप्ति एक समय में, दूसरी अंतर्मुहूर्त में, और फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्रमशः एक एक समय। तो आहार तो जन्म से होता नहीं है। हाँ, आहारक शरीर जहाँ जहाँ होगा, जन्म से नहीं होता। मीन्स आहारक शरीर का उत्पत्ति समय तो है ही, आहारक शरीर का उत्पत्ति समय तो है ही। तो उत्पत्ति जिसका जो समय है वही उसका जन्म। बात समझ गए? हाँ, लेकिन तो उस आहारक शरीर में पर्याप्तता तो पूरी है। तो आहारक है। हमने जी आहारक शरीर बनाने के लिए पर्याप्ति नई शुरू करनी पड़ती है, राइट? इसीलिए आहारक समय के टाइम पर्याप्ति वापस नहीं शुरू करनी पड़ती है। हाँ, जन्म के समय जो होती है पर्याप्ति, वो पर्याप्ति से आहारक शरीर नहीं बनता है, लेकिन आहारक शरीर बनाने के लिए नई पर्याप्तियां बनानी पड़ती है। इज दैट ट्रू? इनका प्रश्न क्या था जो मधुमिता जी ने पूछा? शम्मी जी, प्रश्न ये है कि आहारक शरीर में भी कहते हैं कि आहारक शरीर में पहले एक समय में शरीर पहली एक समय में बनती है, फिर दूसरी अंतर्मुहूर्त में, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी पर्याप्ति क्रमशः एक एक समय में बनती है। लेकिन आहारक शरीर तो बहुत बाद में बनता है, साधुओं के ही होता है। तो उसमें पर्याप्ति है या नहीं है, वो कहाँ से आ गई? फोन में प्रॉब्लम कुसुम जी का क्या? मैं प्रश्न पूरा समझ नहीं पाई हूँ कि आहारक लब्धि वाला जो शरीर है, आहारक शरीर बोल रहे हैं? हाँ शमनी जी, ये ना क्विज के क्वेश्चन के साथ रिलेटेड नहीं है, ये अलग प्रश्न है। मेरे ख्याल से आहारक लब्धि की बात कर रहे हैं कुसुम जी, कि आहारक लब्धि तो मतलब जैसे वो तो जन्म के समय तो, या मतलब गर्भ धारण के समय तो होती नहीं है, वो तो बाद में बनाते हैं आहारक शरीर। तो वो आहारक शरीर की पर्याप्तियां उसी समय मिलती होंगी जब वो बनाते होंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, यही प्रश्न है ना आपका कुसुम जी? अनम्यूटेड हैं कुसुम जी, आप म्यूटेड हैं। कुसुम जी, आप अनम्यूट करके बोलें। हाँ शम्मी जी, आप सुन रही हैं? सुन सकते हैं? अब बोलिए, अब बोलिए। ये अनम्यूट हो गया शायद।
अनम्यूट कर दो ना। हाँ देखो, शरीर जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ पर्याप्ति, शरीर जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ पर्याप्ति होगी। नहीं आ रहा है। तो फिर और जिस समय व्यक्ति शरीर को धारण कर रहा है तो उस समय ऊपर, और एकदम एग्जैक्ट मैं प्रश्न फिर समझती हूँ आपसे। इसको छोड़ देते हैं, अपन एक बार आगे चलते हैं। हाँ, तो वंदना में एक था कि छोड़ देते हैं। क्विज में एक था क्वेश्चन कि ज्योतिषी देव के कितने, आई थिंक 4 प्राण आए थे क्विज में। तो बट नारकी देवता, संगी तिरेंच और संगी मनुष्य सब में 10 प्राण आते हैं। ये यहाँ पे तो 4 बंद है। प्राण कैसे आया था आंसर? नहीं, इसका ना ये क्वेश्चन ज्योतिष के देवों का नहीं था, ज्योतिष के देवों के विमान का था। ओह अच्छा, तो पृथ्वी का हो गया। हाँ, इसलिए हाँ, फिर इसलिए 4 इसलिए प्राण। उनके 4। ओह अच्छा, ओके। और वंदना में और एक था कि मिथ्यात्व के जो अपन इसमें 25 बोल में जो भेद पड़े और दूसरी जगह पे ऐसे भेद आते हैं कि अप्रावचनिक मिथ्यात्व वगैरह दूसरे जो भेद आते हैं, तो वो 25 बोल में क्यों नहीं है और फिर दूसरे भेद क्या है? तो उसमें 4 प्रहर साधु जीवन रहता है, तो उस टाइम पे 6ठा और 7वां गुणस्थान हो सकता है कि नहीं औषध में? अब 2 जने बोलने लगे, एक बार शायद प्रफुल्ल जी पूछ रहे थे। ये वो कह रहे हैं 2 डिवाइस। हाँ, अब एक जन बोलिए कोई भी। अच्छा सम्मी जी, एक क्वेश्चन था कि जब भी हम पौषध करते हैं 4 प्रहर का 8 प्रहर का जो भी है, तो एक्चुअली वो तो उतना टाइम के लिए एक्चुअली साधु जीवन ही है हमारा, तो उसमें 6ठा और 7वां गुण स्थान हो सकता है कि नहीं? नहीं, गुणस्थान तो आपका वही होगा जिसका जो है 5वां है, तो 5वां ही गुणस्थान होगा। लेकिन साधु को तो 6ठा 7वां हो सकता है ना, तो साधु जीवन नहीं है। साधु के तो 6ठा गुणस्थान में ही होता है। इसमें एक ध्यान देने की बात है, मतलब जैसे गुणस्थान ये तो व्यवहार की चीजें हैं, भावों से गुणस्थान 6ठा भी हो सकता है, भावों से गुणस्थान व्यक्ति आगे जाता है, तो व्यवहार से तो वो 5वां गुणस्थान ही मानेंगे। पौषधि की अपेक्षा उसको गुणस्थान 6ठा नहीं मानेंगे, साधु वतचर्या हो जाती है। और भले आपने पौषध पचका है, लेकिन जैसे वो सामायिक की भी बात करते हैं अपन, 9 कोटि का सामायिक, आपका आरंभ समारंभ सारा तो आपके जो अनुमोदन की क्रिया या जो बिजनेस आदि है या जो इंटरेस्ट आदि है, वो सब सारा तो कंटिन्यू चल रहा है, तो पूर्ण व्रत तो व्यतीत नहीं है। और महाव्रत भी नहीं है, तो हाँ, तो वो नहीं है। साधु वत वहाँ ये कहा जाता है जैसे साधु बिल्कुल संयम का जीवन जीता है, तो 24 घंटे के लिए साधु वत जीवन हो जाता है। सांसारिक से एक बार पूरा छूट जाएंगे। हाँ वंदामीन। हाँ नमस्कार जी, एक क्वेश्चन है, निकृति शब्द का अर्थ क्या है? प्रवंचना, कपट, कूट तोल माप, असत्य भाषण। निकृति, निकृति, हाँ, निकृति शब्द का अर्थ क्या है? तो 4 इसमें ऑप्शन है, प्रवंचना, कपट, कूट तोल माप, असत्य भाषण। तो ये कौन सा? ये कहाँ संबोधि में संस्कृत के श्लोक में तो निकृति वर्ड आता है, लेकिन फिर जब हिंदी का अर्थ बताया गया है तो उसमें निकृति के लिए कुछ नहीं बोला गया। मुझे एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। ठीक, बंदा में से। वंदना में मिथ्यात्व के क्या क्या भेद है? हाँ, मिथ्यात्व के आभिग्रहित, ये अपन 5 जो भेद बोलते हैं, आभिग्रहित,
अनाभिग्रहिक, अभिनिवेशिक, ये 5 जो प्रवचनिक प्रकार। और कुप्रवचनिक। प्रवचनिक हाँ। भी है ना। हाँ, तो बट फिर 25 बोल में 10 अलग मिथ्यात्व क्यों होते हैं? जैसे साधु को असाधु शर्त तो मिथ्यात्व, असाधु हाँ, को साधु। 10 प्रकार का ये मिथ्यात्व मानते हैं। साधु को असाधु माना, यानी अलग अलग टाइप से ये मिथ्यात्व की परिभाषा की जाती है कि मिथ्यात्व हम किन किन को कह सकते हैं। जो साधु को असाधु मान रहा है ये भी मिथ्यात्व का एक लक्षण है। ये 10 प्रकार के 10 की 10 हो जरूरी नहीं है। एक भी साधु को असाधु मान रहा है तो वो भी मिथ्यात्व का लक्षण है। अच्छा। सिम्टम अपन कैसे व्यवहार में कैसे मानेंगे कि कौन मिथ्यात्व है, तो ये सिम्टम बता दिए कि इस प्रकार का सिम्टम जिसमें है वो मिथ्यात्व है। तो फिर अप्रावचनिक मिथ्यात्व मतलब क्या हुआ? अप्रावचनिक तो जो भगवान की वाणी है उसके खिलाफ। हाँ, प्रवचन के खिलाफ कोई बात करने वाला। ओके। और प्रवचन होता है तीर्थंकरों की वाणी। शमी जी, मेरा एक प्रश्न है कि ये जो 3 दृष्टियां होती हैं, सम्यक, मिश्र और मिथ्यात्, और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां होती हैं, सम्यक, मिश्र और मिथ्यात्, तो ये दोनों में कुछ फर्क है? इन दोनों में क्या फर्क है? नहीं, वापस क्वेश्चन क्या है? 3 दृष्टियां जो होती है, सम्यक दृष्टि, मिश्र दृष्टि और मिथ्या, और दर्शन मोहिनी की भी 3 प्रकृतियां होती हैं, सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन और मिश्र सम्यक दर्शन। तुमने अनम्यूट किया नहीं पहले? अनम्यूट तो करो। जो मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी और चरित्र मोहिनी। अनम्यूट करो। ठीक है। तो इन दोनों में मिथ्या दर्शन और मिश्र दर्शन। हाँ, ठीक है। उन्हीं के सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन और सम्यक मिथ्या दर्शन। और आपका प्रश्न है ये जो 3 दृष्टियां हैं इन दोनों में अंतर क्या है? हाँ। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। हाँ जी। तो सम्यक्ति में पाए जाने वाला दृष्टि ही सम्यक दृष्टि होगी। मिथ्यात्व में पाए जाने वाला मिथ्या दृष्टि, और सम्यक मिथ्यात्व में पाए जाने वाला सम्यक मिथ्या दृष्टि। दर्शन और दृष्टि वो बात एक ही हुई, दोनों एक ही चीज है। हाँ, दर्शन कहें या दृष्टि। हाँ, ठीक है। समझ गया। वंदामि नमः स्वामी समरी जी। मेरा एक प्रश्न है, पढ़मम नाणम तो दया, उसको थोड़ा सा समझाएंगे? भगवान ने कहा पढ़मम नाणम, पहले ज्ञान, तो दया, उसके बाद दया। जैसे छोटे से उदाहरण से अपन समझ सकते हैं कि जब तक हमको जीव का ज्ञान नहीं होगा तो हम दया कैसे कर पाएंगे। मान लीजिए पानी के एक बूंद में असंख्य जीव, ये ज्ञान होने के बाद ही उसके प्रति हमारे भीतर दया की भावना आएगी, अनुकंपा की भावना आएगी। तो 9 तत्वों का पहले ज्ञान करेंगे, क्या जीव है और क्या अजीव है। जब तक ये नहीं जानेंगे हम, तब तक दया नहीं आएगी। ठीक है प्रश्न जी। अच्छा, दूसरा समझे, दूसरा एक प्रश्न था, नॉन जैन जैन नहीं है तो उसको जैन धर्म को शॉर्ट में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? शॉर्ट में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? किसी को जैन का बिल्कुल पता नहीं है तो हम अपने जैन धर्म का क्या, उसका मूलभूत क्या है, वो कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, मूलभूत अपन ये 5 चीजें ही है।
कि भाई किसी को कष्ट मत दो, किसी की हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अब्रह्मचर्य का सेवन मत करो, या सदार संतोष की बात करते हैं, और परिग्रह की सीमा करो, मूर्छा आसक्ति को कितना कम कर सकते हैं। तो मूल जैन दर्शन ये 5 ही बात करता है। ये 5 की बात में जो अहिंसा और सत्य वो तो सभी धर्म कहते हैं, तो जैन धर्म का क्या इतना यूनिक क्या है, विशिष्ट क्या है उसमें, वो बताना है तो कैसे बताएंगे? इतनी सूक्ष्मता से आज जैन दर्शन ने अहिंसा की बात कही, उतनी सूक्ष्मता से किसी में भी, और विशेष रूप से भगवान के ये जो षड्जीव निकाय है, पृथ्वीकाय, अपकाय, वनस्पतिकाय आदि, इतनी सूक्ष्मता से किसी दर्शन में भी नहीं कहा गया है। अच्छा, और एक और प्रश्न है, मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों है? एक तो बार बार ये मिलता नहीं है। अभी जो लास्ट हमारा उत्तराध्ययन था, 10वां अध्ययन था, हाँ, बार बार नहीं, वो बार बार क्यों नहीं मिलता है, वही प्रश्न है। अच्छा, बार बार मिलता क्यों नहीं है? हाँ हाँ। ये एक फिक्स ही है कि व्यक्ति कंटिन्यू, जैसे भाव स्थिति, काय स्थिति की भी बात की। अच्छा, मनुष्य में सिर्फ 7 कंटिन्यू भी यदि कोई पैदा होगा तो वो 7 से 8 बार ही पैदा हो सकता है, उससे ज्यादा होगा नहीं। जबकि वनस्पति में देखें हम, वनस्पति में कोई जीव है तो अनंत बार वहां पैदा हो सकता है। पृथ्वी का आपकाय में असंख्य बार पैदा हो सकता है, जबकि मनुष्य के लिए भगवान ने कहा सिर्फ 7-8 बार ही पैदा होता है। ये भगवान की वाणी है, नियमा है, बस भगवान ने कहा कि ऐसा ही होता है। कृतज्ञ उसमें। और इसमें जो कल उस दिन बताए थे अपन 10वें अध्ययन वाले दिन, जो वहां पे बताए थे आप लोगों को, 7-8 भाव ही करेगा एक साथ यदि कोई कर भी रहा है तो 7 भाव सिंपल जो मनुष्य का है, 8वां भाव यदि 7वें भाव के बाद भी उसने मनुष्य आयुष्य बंद कर लिया है तो वो योगलिक में ही जाएगा और वहां से वो देवलोक ही जाएगा। अच्छा। यदि मनुष्य का बंध 7 भाव के बाद फिर से मनुष्य का बंध किया है तो। अच्छा, वंदनामि नमस्कार, कृतज्ञ उसमें। हाँ, इसमें बहुत हाँ बोलिए। हाँ, एक प्रश्न था कि जैसे हम लोग कभी जाते हैं ना, कहीं किसी भी दुकान में गए, कहीं भी गए, तो वहां पे कस्टमर सर्विस का रहता है कुछ कि उन्होंने अच्छा कस्टमर सर्विस आपको दी, नहीं दिया, एक्सपीरियंस अलग अलग रहता है। और फिर कई बार वो सर्वे भरवाते हैं आपसे कि भाई आप क्या रेटिंग दे रहे हैं, बहुत अच्छा, ठीक ठीक, बुरा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि आपको मतलब बुरा ही मिला कस्टमर सर्विस, तो हम अगर बुरा रेटिंग देते हैं तो कुछ हिंसा का दोष लगता है हमको, मतलब इसमें कैसे इसको सोच सकते हैं? नहीं, पहली बात तो बुरा नहीं मिला तो बुरा रेटिंग क्यों देने जा रहे हैं? नहीं, अगर बुरा मिलता है तो मतलब सही में बुरा बिहेव किया, कस्टमर सर्विस मिली हमको बुरी, तो उस बुरे को बुरा रेटिंग मतलब दे सकते हैं कैसे? हाँ, बिल्कुल, उसमें आपत्ति नहीं है। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार वहां जाएंगे नहीं। चले भी गए तो उसको बोला जा सकता है भी, जो भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं। और किसी का आपके निमित्त किसी का नुकसान हो रहा हो, एक बार में हम क्यों उसको सर्टिफिकेट दें कि नहीं आप हमारे साथ बुरा किए या कुछ हुआ। तो हो सकता है कोई वजह भी रहा हो, कोई कारण भी रहा हो, तो एकदम से किसी के आजीविका पर इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पर फर्क क्या पड़ता। हम यदि उदारता का परिचय देते हैं तो फर्क क्या पड़ता। हाँ, तो वही तो मतलब हम लोग बहुत बुरा रेटिंग किसी को मतलब नहीं दे, ये ही करना चाहिए शायद, क्योंकि
क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सेम व्यक्ति से आप दोबारा शायद नहीं मिलेंगे, क्योंकि कई बार फोन में होता है, कुछ भी होता है, हाँ तो बार बार का राइट एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। तो राइट मतलब नहीं दें बुरा, बट लेकिन हाँ उसका बुरा नहीं देना। लेकिन उसका उल्टा ये है कि अगर आपने सही रेटिंग नहीं दी तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता जाएगा और कितने लोगों का मतलब उस नुकसान ही होगा, कंपनी का भी, दूसरे लोगों के साथ बुरा करेगा। नहीं तो उसको बात ये है कि यदि आपको दोबारा, वो आपको उस समय ये पता नहीं है कि वो किस स्थिति में है, किस सिचुएशन में है। एक तो हाँ पता है कि ये सबके साथ ऐसा करता है, राइट, हाँ सही बात है। तो एक बार में अपन किसी को भी खुद के हम अपने मनोभाव को देखें। आप जो बिहेव अपने फैमिली मेंबर के साथ सुबह किए हैं वो शाम को नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ कुछ ना कुछ व्यक्ति की अपनी मनस्थिति, अपनी समस्याएं होती है। हाँ सही बात है। थैंक यू शमी जी। चलिए एक दो प्रश्न मैं पूछ लेती हूँ आप लोगों को। श्रावक के 3 मनोरथ कौन बोलेंगे? कौन कौन से श्रावक के 3 मनोरथ हैं? मैं बोल दूं? कोई भी बोल सकते हैं। हाँ, वह दिन धन्य होगा जब मैं अपरिग्रही बनूंगा, वह दिन धन्य होगा जब मैं मुनि व्रत धारण करूंगा, और वह दिन धन्य होगा जब मैं संथारा संलेखना मरण करके करूंगा। तो ये 3 मनोरथ देखिए। पहला, अपरिग्रही बनूंगा, तो एक लक्ष्य बन जाए कि मुझे परिग्रह, कब तक मुझे परिग्रही चेतना रखनी है। परिग्रही यानी जो भी सांसारिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, एक उम्र एक निर्धारित कर लेना चाहिए कि इतने उम्र के इतने समय तक मैं इन सांसारिक चीजों में रहूंगा। और दूसरा एक लक्ष्य बन जाए कि साधु जीवन का। तो साधु का आप कैसे विकल्प ला सकते हैं, क्या सोच सकते हैं? बार बार सांसारिक क्रिया में 6 काय की हिंसा निरंतर हो रही है। तो 6 काय की हिंसा ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसमें 6 काय की हिंसा नहीं होती है वहां। और पता है आपको कि साधु तो बनेंगे नहीं, अब बार बार सोचने से होगा क्या? तो वहां पर ये भावना भानी कि वो 6 काय की हिंसा निरंतर हो रही है और जब तक सांसारिक रहूंगा ये हिंसा होती रहेगी। और पता नहीं वापस मुझे ऐसा धर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा जैन कुल जैन परिवार, ऐसी अनुकूलताएं जो आज मिली है। तो काश अच्छा हो कि मैं जैसा भी कम से कम साधुवत जीवन जी सकता हूँ। या इसका मतलब भी ये भी हो जाता है कि हमारे महाव्रत के प्रति कितनी हमारी अनुमोदना बोल रही है, और भाव में कैसे घर छोड़ना भी नहीं, छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, भाव में हमारे कैसे साधुता आ सकती है। तो ये चिंतन बार बार कर सकते हैं। और एक बार ये भावना भानी, कभी भी मैं मरूंगा बिना अनशन के, बिना संसारा के न जाऊं। तो अपने चेतना को इतने जागरूक बना लेना, इतना कॉन्शियसनेस को, अपनी जागरूकता को इतना बढ़ा लेना कि ऑटोमेटिक भाव में ही किए या नहीं किए नथिंग, ये 3 आप सिर्फ भाव में भी ला रहे हैं तो उत्कृष्ट निर्जरा का कारण बन जाता है। तो ये श्रावक के 3 मनोरथ, और प्रत्येक व्यक्ति को अपना ऐसा जगह नोट करके रखना चाहिए, बार बार दृष्टि जाए। कम से कम सोने के समय, एक अपने शायद किसी ने पूछा था रात को क्या क्या करके सोएं, तो रात को ये 3 मनोरथ का चिंतन कर सकते हैं। और सागारी संथारा तो प्राय करते ही होंगे, नहीं तो सागारी संथारा का तो एक लक्ष्य बन जाना चाहिए कि मेरा ये 3 मनोरथों का बार बार मैं कैसे अनुचिंतन करूं।
शमली जी एक प्रश्न है, घर में कभी कभी चींटी कीड़ा ये सब आ जाते हैं जमीन पे, तो वो रास्ते से हटाना चाहिए उनको, या मतलब उनको ये तो है कि हम मार नहीं रहे हैं, लेकिन उनको साइड में करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? घर पे आए हैं, देखिए आप उसको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आपके पैर से वो नहीं मरेगा। आप मतलब इसलिए उसको हम साइड में कर सकते हैं, किसी और के पैर से वो न मर जाए या कोई चीज कोई सामान उसके ऊपर न रखा जाए। हाँ। तो हमारे भीतर इंटेंशन ये रहे कि नहीं, वो कैसे हमारे अनावश्यक हिंसा का दोष का कारण न बने, तो उसको क्यों छोड़ें। तो इंटेंशन तो यही है कि उसको हानि ना हो, लेकिन साइड हाँ। करके अब हानि हो जाए, क्योंकि हमको तो पता नहीं आगे क्या होगा, तो अगर हानि हो गई तो फिर उसका दोष हमको लगेगा या कैसे? नहीं, हानि हुई यानी वहां से उठा करके जो दूसरे जगह रखा। हाँ। नहीं, उसके बाद दूसरे जगह रखा लेकिन वहां पे हानि हो गई तो फिर क्या करेंगे? तो उसका दोष एक डॉक्टर के हाथ से ऑपरेशन करता हुआ पंचेंद्रिय जीव की हिंसा हो जाती है, चल बसता है, तो वो लक्ष्य पूर्वक यदि कर रहे हैं, टोटल देखिए जैन दर्शन किसी एक चीज को महत्व दे रहा है तो सिर्फ भावों को। भाव में यदि आपकी अहिंसा की चेतना है तो वो जो हिंसा हुई वो द्रव्य हिंसा हुई, भाव हिंसा नहीं हुई। भाव हिंसा का दोष नहीं लगेगा। शमली जी इसमें एक और दूसरी एक बात बताना चाहूंगी। आपका इंटेंशन कि वो उसकी हानि न हो, उसको किसी प्रकार का तकलीफ न हो, बाहर ले जाके रखे। आप बाहर ले जाके रखे, उसमें दो प्रकार की स्थितियां हो सकती है। हो सकता है कि उसको बहुत अच्छा लगे, हो सकता है उसको बहुत बुरा लगे। घर में उसको उठ रहा हो, उसको बाहर का खुली हवा चाहिए, तो उसको अनुकूलता मिल रही है, प्रतिकूलता मिल रही है, वो मूक है, बोल नहीं सकता, आपको पता नहीं, जो भी जीव है किसी को पता नहीं। तो अब बात यह है कि हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा है कि उसकी हानि ना हो। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? नहीं, वो कि कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि भाई अपना डर, खुद को भी डर लगता है कि ये जीव कुछ हमारा काट जाएगा, कुछ कर जाएगा, इसलिए भी बाहर कर देते हैं। तो वो भय से भी तो कर रहे हैं हम, जैसे मकड़ी या कुछ। तो वो भय और उसका कैसे फिर होगा? भय से भी कर रहे हैं, तो भय तो खुद ही हिंसा ही है, भयभीत तो होना भी हिंसा है, किसी को भयभीत करना भी हिंसा है। लेकिन एक बात है, भय कहो या जो भी कहो, आज कोई भी जीव जिनावर बार बार आपको दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रति भाई यहाँ क्यों है या बाहर रख दो, तो भय से कर रहे हैं, तो वो राग देश जुड़ा हुआ है, और राग देश खुद ही हिंसा है। अच्छा, थैंक यू सर। तो ये विरोधजा हिंसा हो जाएगी क्या? विरोधजा हिंसा अपने बचाव के लिए करना। हाँ, ठीक है। तो श्रावक के लिए संकल्प या हिंसा का मनाही है। बचाव के लिए हिंसा मनाही नहीं है, लेकिन वहाँ मूल फिर जाए, मनाही नहीं है लेकिन पाप तो पाप ही है। और इसमें शमी जी एक और प्रश्न था कि जैसे इरियापथिक सूत्र में जैसे यहाँ से उठा के वहां रखना जो सारी चीजें हैं, तो वो हमारे एकेंद्रीय जीवों के लिए भी होती हैं क्या? जैसे मतलब पानी है या मतलब अग्नि है, सबके लिए, मिट्टी सभी के लिए होगा वो। अगर हमने पानी को एक गिलास में इकट्ठा कर लिया तो वो हिंसा हुई कैसे? मतलब नहीं, पानी को इकट्ठा कर लिया का मतलब नल से पानी जो लिया, हाँ, ये सब आवश्यक तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। हाँ, अनावश्यक, बस श्रावक के लिए भगवान ने इतना ही कहा, अनावश्यक हिंसा से बचो। बट ये सारे आवश्यक को करते हुए भी भीतर कंपन हो कि मेरी मजबूरी बस आवश्यकता बस कर रहा हूँ। जैसे छोटा सा एग्जांपल दूं,
गांधी जी दतून जो करते थे, ये ब्रश आदि ने जो वृक्ष के नीम के और जो भी दतून करते थे, अपने साथ वाले को भी ट्रेनिंग दिया हुआ था। खुद भी क्या करते थे, वृक्ष से पहले खमत कामना करते थे कि मेरी विवस्था है, मेरी आवश्यकता है, इसलिए आपको हम तकलीफ दे रहे हैं, और उतना ही तोड़ते थे जितना उनको जरूरत होता था। तो किसी का भी हम उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं और मजबूरी है, एक मन में कंपन हो और सामने वाले से क्षमा याचना भी साथ में कर लें। कृतज्ञ उसमें शमनी जी। शमनी जी, क्वेश्चन था। हाँ, बंदामी एक अपने जब जीव के शुभ योग और अशुभ योग, पुण्य और पाप प्रकृति, जब शुभ योग जब होता है जीव को, उस समय पाप प्रकृतियों का आश्रय होता रहता है या नहीं होता है? दोनों में से एक ही चीज होगा, या तो पाप का आश्रवण होगा या पुण्य का आश्रवण होगा। एक समय में एक ही चीज का आश्रवण होगा। तो जैसे अगर पुण्य का अगर शुभ योग है तो शुभ शुभ योग योग है तो पुण्य का ही होगा, पाप प्रकृति को आश्रय नहीं होगा फिर? नहीं, एक समय में एक ही होता है। अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जिस समय शुभ योग होता है उस समय पाप प्रकृति का आश्रय तो कंटिन्यू रहता है, उसमें कुछ फेरबदल नहीं होता है, वो शुभ उपयोग के कारण होता है। बट एनीवे, हाँ, हमारी प्रवृत्ति शुभ है, आश्रय तो हो रहा है क्योंकि योग है, तो वो शुभ का ही आश्रय होगा, वो शुभ का ही होगा। हाँ, ठीक है शमनी जी। हाँ, और दूसरा एक क्वेश्चन था शमनी जी, कि अपने जो नमोकार मंत्र में ये बोलते हैं, आता है जैसे आचार्य और उपाध्याय, तो आचार्य और उपाध्याय जी के अंदर इसमें ये जनरल क्वेश्चन आया था मेरे स्वाध्याय के दौरान कि इसमें हमारे समाज में हमने ये देखा अभी तक कि ओनली मेल ही आचार्य और उपाध्याय होते हैं, फीमेल नहीं होते हैं। ऐसा क्यों शमनी जी? जीव तो सेम है। हाँ, जीव तो सेम है, लेकिन ऐसे कोई मनाही नहीं है कि स्त्री आचार्य नहीं हो सकती है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से देखा जाए, अपनी जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, और महिलाओं के प्रति उतना शायद एक जो होना चाहिए अहोभाव होता नहीं है, या महिला की डिसिप्लिन माने या न माने जो भी है, लेकिन कहीं ऐसे मना नहीं है कि आचार्य स्त्री आचार्य बन नहीं सकती, कहीं ऐसा निषेध नहीं है। क्योंकि हम नीचे आगम में कहीं भी ऐसा है नहीं, क्योंकि जब समदृष्टि की मैं बात करता हूँ, सम की, तो समदृष्टि होना मतलब हर जीव आत्मा एक इंद्रिय से लेके सन्नी पंचेंद्रिय तक सब समान है। सुभाष जी, जी समान है। आज जो भी आचार्य अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं, तो नियुक्त करते हैं हर एंगल से उनको उतना सामने वाला सक्षम नजर आना चाहिए। यदि कोई, जैसे आचार्य तुलसी को किसी ने पूछा था कि भाई स्त्री आचार्य क्यों नहीं होती, आचार्य तुलसी ने यही कहा था, बना सकते हैं, हमारे साथ भी प्रमुखा जो कनक प्रभा जी हैं उनको बनाया जा सकता है, या आचार्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको आचार्य बनाए। तो ये उनसे फिर सामने वाले से कोई और ज्यादा योग्य लग रहा है तो फिर वही आता है कि हाँ चलो इनको बनाते हैं। अभी तक समझी जी, तो फिर वो क्वेश्चन अगेन कम्स बैक कि हमने जब से देखा है तब से हमने ऐसा नहीं देखा कि एनी आचार्य इज बिकम फीमेल। सो क्या क्वेश्चन वापस बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि आचार्य और उपाध्याय हमेशा मेल ही क्यों होते हैं? सो वो क्यूरियोसिटी थी, सो अगेन आई अंडरस्टैंड कि वो योग्यता के हिसाब से उनको भगवान महावीर के समय से लेके अब तक जितने भी किसी भी संप्रदाय में जितने भी आचार्य हुए हैं वो मेल ही हुए हैं, पुरुष ही हुए हैं। हाँ, वही बात। लेकिन ऐसा निषेध नहीं है कि स्त्री बन नहीं सकती आचार्य। तीर्थंकर के लिए जरूर निषेध है कि स्त्री तीर्थंकर नहीं बन सकती, ये नियमा है।
हाँ वो बराबर है शमनी जी, वो उसमें उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक क्वेश्चन वाज कि अभी तक आचार्य स्त्री क्यों नहीं बनी, क्योंकि स्त्रियों में भी ऐसा है कि बहुत ज्ञानी और बहुत गुणी, ऐसा सुनने में आया, देखने में आया, पढ़ने में आया, जैसे हर संप्रदाय में। तो वो एक क्वेश्चन आया। नहीं समणी जी, चंदना जी जो आचार्य है, आचार्य चंदना जी, वो आचार्य ही है ना? क्या क्या प्रश्न है? चंदना जी जो है, चंदना जी आचार्य जैन धर्म की जो है। देखिए इसमें एक बात, इसमें एक बात नहीं है वो। सुनिए आज कोई मान लीजिए कोई भी दीक्षित है, ठीक है, दीक्षित है, उसने अपना एक ग्रुप बना लिया और वो अपने आप को आचार्य खुद ही अपना टाइटल लगा दिए, या जो ग्रुप बनाया उन्होंने उनको अनाउंस कर दिया कि हाँ हमारे आचार्य हैं, और फिर आगे से आगे उनके साथ कोई दीक्षित होते गए। वो एक अलग बात है कि भाई अमुक ऐसे कोई एक आचार्य के द्वारा स्थापित कि भाई अमुक आचार्य है, ऐसा शायद उनके साथ भी नहीं है। हाँ करेक्ट है शमनी जी। और दूसरा एक शमनी जी और है, ये भी क्वेश्चन आया, क्योंकि यहाँ के बच्चे पूछते हैं कि आचार्य, और मैं किसी की आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ, मिथ्या में दुख रहा हूँ, या बच्चों ने ये भी पूछा है कि अगर आचार्य चंदना जी है तो फिर 36 गुण जो है वो चंदना जी में है, वो नहीं है तो वो आचार्य नहीं हुए। क्योंकि जब हम 36 गुणों की बात करते हैं तो उसके अंदर जो महाव्रत है, जो त्याग है, उसके अंदर ट्रेवल अलाउ नहीं है उसके अंदर। तो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, नाट बड़ों को तो आप छोड़िए, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं 36 गुणों का धारी वो आचार्य है, तो 36 गुणों के धारी वो है, तो फिर वो क्वेश्चन पूछते फिर वो आचार्य कैसे? तो आई डोंट नो शमनी जी कैसे आंसर दे उनको बच्चों को, क्योंकि यहाँ के बच्चे। सुनो सुभाष जी, आचार्य तो आप भी अपने नाम के आगे लगा सकते हैं ना, लगा देने से मेरी तो भावना है शमनी जी किसी दिन वो लेकर के ये बनूं मैं साधु। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि आज उपाधि कोई लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, उपाध्याय अमुक जी, आचार्य अमुक जी, लेकिन ये एक उपाधि लगाने मात्र से वो उन सब के धारक हो जाएं ये जरूरी नहीं है। हाँ वो बराबर शमनी जी, वो हमारे को डिफिकल्टी कहाँ आती है जब हम पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठशाला में उनको बड़े तो हम समझ जाते हैं, द प्रॉब्लम कहाँ आती है। एक बात और है, देखिए जो ट्रैवल की भी बात बोले आप, मूल अपन जैन साधु की परिभाषा देखें, कंचन और कामिनी दोनों के जो त्यागी होते हैं, तो मूल शुद्ध साधु किसको कहेंगे हम? कंचन और कामिनी के त्यागी होते हैं। और जो मूल पूर्ण अहिंसक होंगे, जो पूर्ण 5 महाव्रत वाली जो बात कर रहे हैं, पूर्ण अहिंसक। और शमनी जी उसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे आचार्य की हमने करी तो 9 बाढ़ की ब्रह्मचर्य, उसमें कितना डिटेल में है। आई मीन आप तपस्या, विशाल इतना बड़ा त्याग उन आचार्यों में रहता है। तो मेरे को हमको समझाने में वो थोड़ी डिफिकल्टी होती है, या नॉर्थ अमेरिका के बच्चों को जो 2 चीजें देखते हैं, एक तो क्रिया में देखते हैं नहीं नवकार मंत्र में आचार्य जी के 36 गुण, उपाध्याय जी के 25 गुण और साधु जी के 27। अब वो गुणों को जब हम समझाते हैं, देन दे स्टार्ट कंपेयरिंग व्हाट दे सी। तो जब देखते हैं तो बोलते हैं ये आचार्य, फिर इन्होंने नाम कैसे लगा लिया, फिर वो डिफिकल्ट टू आंसर दोस क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई एक बात सुनिए, इसमें डिफिकल्ट वाली बात नहीं, मैं छोटा सा एग्जांपल से बात बताना चाहूंगी। आचार्य भिक्षु को किसी ने पूछा था, अमुक साधु है या असाधु है? कोई साधु के लिए किसी ने पूछा कि अमुक को साधु मान रहे हैं या असाधु मान रहे हैं? आचार्य भिक्षु ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। एक आंख का पेशेंट, आंख का मरीज डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर उसको चश्मा देता है, देखने का काम मरीज खुद करता है, एक पैरामीटर दे दिया, साधु कौन असाधु कौन? भाई अमुक अमुक क्वालिटी हो तो अमुक साधु है, या अमुक आचार्य है, या अमुक तीर्थंकर है, या अमुक सिद्ध है। एक पैरामीटर हमको दे दिया, अब उस पैरामीटर सारा उसके साथ घटित होता है तो वो उस पद के योग्य है। अब होता है नहीं होता है, जितनी समझ है तो उस हिसाब से देख सकते हैं। और दूसरी बात, व्यक्ति विशेष में जाए क्यों, इतना ही है। हाँ, भगवान ने कहा है ये चीज है तो वो अमुक शुद्ध साधु या अमुक 36 गुणों के धारक है आचार्य, बस इतना में ही जाए। बाकी ठीक है,
अपने नाम के आगे कौन क्या लगाता है क्या नहीं लगाता है। तो बच्चों को भी इतना ही करना चाहिए। अब डॉक्टर की जो उपाधि होती है, एक तो डॉक्टरी करने से डॉक्टर की उपाधि मिलती है, एक पढ़ाई से भी, तो उसको आज हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं मान लेगा कि हाँ ये ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी करने वाले डॉक्टर हैं। शमनी जी मैं समझ रहा हूँ, और हमने बच्चों को वैसे बताया कि हमको नवकार मंत्र में व्यक्ति विशेष नहीं है, गुणों की महत्ता, गुणों का पूजन है। जिस जीव आत्मा में लोकालोक में ये गुण है उनको नमन है, बाकी को नहीं है, वो हमारा विषय है। आई थिंक इट गोज बैक टू, आप कैसे भी देखें समाज में क्या है कि अगर मैं बताऊं तो ऐसा सुभाष जी, कौन क्या नथिंग, इस विषय में अपन नहीं जाते हैं। बस पता चल क्या, हाँ अमुक गुणों के धारक अमुक होते हैं, कौन क्या वो सारा चीज केवल ही जाने। तो उनको बच्चों को भी यही समझाओ भाई, जो बात समझ में नहीं आए तो भगवान ने कहा केवलियों पर छोड़ दो, उसमें उलझना। ठीक है शमनी जी। वंदामी नमन स्वामी, थैंक यू। हाँ, प्रतिक्रमण संबंधी कामना करती हूँ। वंदामी, अगर प्रतिक्रमण के समय में थोड़ा करते करते समय की अगर वो हो जाए, आगे निकल जाए टाइम, वो अंतर मुहूर्त से आगे निकल जाए तो उसका दोष लगता है क्या? वो एक है कि अपन कहाँ तक अंतर मुहूर्त के बाद भी कर सकते हैं। जैसे अपन जो करते हैं 24 हफ्तों जो है वो सनसेट से पहले हम वहां तक कर सकते हैं, और बाद का जो ध्यान के बाद का जो है वो पंचपद वंदना आदि जो छठा आवश्यक है वहां से हम सनसेट के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद उससे पहले का भी यदि अतिक्रमण कर रहे हैं तो वो दोष लगता है। अच्छा वंदा में और एक चीज पूछना था, अगर हमारा कोई इष्ट हो, कोई संबंधी फ्रेंड हो, कोई अगर हमें उसके परिवार के किसी के बारे में कोई बात पता चले, जो हमें पता है कि वो बात कुछ खराब, उसका नेगेटिव बात पता चले, जो हमारी सपोज वो फ्रेंड है, अगर हम उसके परिवार में बताए वो बात तो वो कलह होगी, लेकिन कोई ऐसी ही बात है, बड़ी बात हो, तो हमें ऐसी बात बतानी चाहिए या ये कहाँ देखिए, ऐसा सबसे भी मत बोलो जिससे किसी जो कलह का कारण बने या किसी का अनिष्ट हो। कृतज्ञ वंदा में। हाँ, अनुमोदन भी नहीं करना। और एक गरिमा जी एक चीज और ध्यान देंगे, मतलब जिससे किसी को कष्ट हो रहा है या किसी का अनिष्ट हो रहा है वो सत्य की असत्य कहा है, सत्य को असत्य कहा है। हाँ, भगवान ने कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले लेकिन वो प्रिय होना चाहिए, और जहाँ प्रियता नहीं है वो उसमें सत्यता नहीं। तो ना बोले वही बेटर है। हाँ, तो मौन किसी का नुकसान हो वैसी बात कहने क्यों जाए। ठीक है वंदा, कृतज्ञ। चुकसाता में श्रमणी जी, लेकिन कोई बड़ी बात किसी को पता हो, किसी की सीक्रेट, तो वो बोलते हैं व्यक्ति के खाना हजम नहीं होता जब तक उस चीज को बताता नहीं। वंदा में और एक था कि अपन जो अभी अपने एक पद्मावती देवी का भी एक मंत्र भेजा था फॉर सर्व कार्य सिद्धि के लिए। हाँ, तो अभी वो यदि मंत्र अपन करते हैं तो एक अपना मिथ्या दृष्टि में आ जाता है क्या? पद्मावती देवी, किसी भी देवी की आराधना, वो ठीक है बताना कि ये चीज, आप आज लौकिक के लिए 50 जगह भटक रहे हैं, तो 50 जगह भटक रहे हैं तो वहाँ एक जगह व्यक्ति टिका रहे, तो टिका रहे उसके लिए ठीक है मंत्र आदि दिया जाता है। लेकिन किसी भी देवी देवताओं की आराधना करना, अब श्रावक 5वां गुणस्थान है, देवता 4थे गुणस्थान में है, वो आपसे छोटे हैं, तो वहां पर देवी देवताओं की आराधना करना और किसी भौतिक चीजों के लिए और विशेष रूप से सामायिक आदि में करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप के इस बात से एक संबंध में मैं पूछना चाहूंगी, जैसे अपने बोलते राम जी हनुमान जी मोक्ष गए, तो अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो क्या हम भी दोष लगता है, या वो सिद्धों में आते हैं तो हमें दोष नहीं लगता? नहीं, वो तो सिद्ध में आते हैं। तो वैसा
दोष नहीं लगता, जैसे देवी देवता का करते हैं वैसे। नहीं तो पूजा हम क्यों करते हैं? पहले तो ये एक चीज ऐसे ही पूछना चाहूंगी, याद करना या पूजा करना, क्या बोल रहे हैं घर में आप? गृहस्थी में तो पूजा। एक बात सुने, घर में जो आप लोग मूर्ति की स्थापना करते हैं, ठीक है, वो देवता के रूप में मोक्ष गए, ये ठीक है, ये आप सुन करके उस कॉन्सेप्ट से आप भौतिक चीज की कामना करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं और भौतिक चीजों की कामना करते हैं, मुझे ये चीज मिले, अमुक मिले, ये हो जाए तो मैं इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी। जो प्रसाद चढ़ाऊंगी सिद्ध हो गए हैं, उनको क्या प्रसाद चढ़ाना? तो वहाँ हमारा कंसेप्ट क्या है, पहले ये देखिए, हम सिद्ध के रूप में उनके गुणों को स्मरण कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं जी। तो अभी जो हनुमान जी और राम जी की जो समाज में जो छवि है, सिद्ध के रूप में कोई जल्दी से याद करता नहीं है जी। हाँ, सुख सहता में श्रमणी जी, हाँ, छोटे श्रमणी जी को मेरी सहायता पूछी। श्रमणी जी मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण साम विष्णु नाम गुणोलक समरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम। शमी जी वंदामी नमस्कार। कमान आता नहीं है पूरा ठीक से, तो खाली ऑडियो में या पाठ किसी से सुन के भी कमेंट कर सकते हैं। क्या क्या बोले, वापस बोलेंगे? पूरा पाठ प्रतिगमन का अगर नहीं आता है, अशुद्ध नहीं बोलूं तो ऑडियो सुनकर, जैसे वंदामी नमन स्वामी श्रमणी जी। और आज जैसे यहाँ इंडिया में अच्छा, हमारा एक चीज और बोल दूं मैं, आज जैसे कोई भी मंत्र आदि, चाहे सपोज नौकार मंत्र को लें, किसी भी मंत्र को कुछ समय होता है, उस समय अपन उसका जाप करते हैं, तो वो मंत्र तो खुद पावरफुल होते ही हैं, लेकिन वो सिद्ध हो जाते हैं या हमारे अपने लिए ज्यादा उपयोगी हो जाते हैं। तो उसमें ग्रहण काल को भी मंत्र सिद्धि का बहुत अच्छा समय माना गया है। तो जिनको भी करना हो तो शायद ग्रहण है, और वो अपनी यहाँ यूएस में रात का समय है, वैसे शायद जहाँ तक मुझे ध्यान में 6 घंटे का और रात के समय है, और सुबह 5 बजे तक रहेगा। उसके बाद भी बोलते हैं थोड़ा प्रभाव रहता है। तो जिनको भी जप आदि करना हो तो ग्रहण के समय जप आदि बहुत पावरफुल होता है। तो वंदामी, हम पार्श्वनाथ भगवान का भी जप अभी ग्रहण काल में कर सकते हैं? हाँ, केवल आगम स्वाध्याय ग्रहण काल में नहीं करना चाहिए। मंत्र साधना ग्रहण काल में बहुत जल्दी सिद्ध होता है। आज हमारा दिल्ली में है 10:15 बजे, 10 बजे के बाद से है वंदामी। हाँ, ग्रहण है। तो शमनी जी अभी पक्षी का प्रतिगमन करते हैं वो तो कर सकते हैं ना अभी रात को, अभी जैसे कैलिफोर्निया में 6:46 हुए तो वो तो कर सकते हैं राइट? हाँ, प्रतिक्रमण तो वो आवश्यक कार्य है, और वो किसी भी काल में, मतलब हर सिचुएशन में किया जा सकता है। भक्तांबर नहीं पढ़ना चाहिए शमनी जी? नहीं, आगम के अलावा किसी भी चीज को ग्रहण काल में कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ जो भगवान की वाणी है, ये भक्तामर है, वो आचार्यों के द्वारा है, कल्याण मंदिर है, आचार्यों के द्वारा कृत है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि जो तीर्थंकरों की वाणी है वो ग्रहण काल में नहीं होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ग्रहण काल के बाद भी लंबे समय तक उसको और नहीं किया जाता। लंबे समय तक का मतलब, जैसे ग्रहण यदि बहुत ज्यादा है तो 24 घंटा और नहीं करते। वंदना में ग्रहण कितने बजे से आज? मेरे ख्याल से 2:15 के आसपास समथिंग किसी ने बताया तो था। रात 2-2:15, हाँ रात को है यहाँ यूएस में।
और सुबह 5-5:15 बजे तक है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा। या आप लोग देख अमेरिका सकते हैं, में ग्रहण है वंदामी, मैं तो ऑनलाइन देखी नहीं है। 4 जुलाई को है। हमें जैसे दिखेगा नहीं, खाली टाइम वो ऐसा है। हम हाँ, अमेरिका में नहीं दिखेगा, इंडिया में है। अमेरिका का 4 जुलाई को है डायरेक्टली। ग्रहण तो अच्छा हो रहा मुझे पर टाइम वो है। हाँ हाँ तो शमी जी ग्रहण तो हो रहा है ना वो। भाई मुझे पक्का ये सब ध्यान में नहीं है, किसी ने बताया मुझे कि रात को यहाँ का राष्ट्रीय हो रहा है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। नहीं बट शमी जी ग्रहण तो हो रहा है ना, चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो रहा हो, लोकालों में ग्रहण तो सूर्य ग्रहण हाँ तो हो हाँ, ना, ग्रहण हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, काल तो हो ही गया ना भाई। राइट। समझे ये जो 14 का प्रतिक्रमण का टाइमिंग कौन से टाइम में करना मांगता है? आज पक्की थी तो मूल सनसेट से लेकर के 48 मिनट तक प्रतिक्रमण को किया जा सकता है। सनसेट के बाद 48 मिनट, जैसे 8:30 से लेके 9:20 तक प्रतिक्रमण कर सकते हैं अभी जो सूर्यास्त बराबर है। और मैं दररोज प्रतिक्रमण नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे पास भाव प्रतिक्रमण का बुक है, वो सुबह और शाम को गिनना मांगता होगा, तो कौन से टाइम पे करना मांगता है भाव प्रतिक्रमण? भाव प्रतिक्रमण तो 24 घंटा कभी कर सकते हैं। बराबर, ओके, थैंक यू। वंदा में एक क्वेश्चन था कि जैसे अपना ये गुणस्थान भी नहीं छोड़ना है, पर एक ऐसी विपदा खड़ी है जैसे परिवार के लिए समझो व्हाटएवर है, तो उसमें यदि कोई किसी मंत्र का जाप करना हो तो किस तरह से सम्यक दृष्टि रख के अपन इसमें से निकलने की कोशिश कर सकते हैं? मतलब चाहिए तो मैं आपको पर्सनल फोन करूं बाद में? नहीं मतलब मैं एक चीज बता रही हूँ, जैसे संसार के हर चीज, अब जैसे किस रूप में देवी देवताओं का ही पूछ रहे हैं क्या? हाँ, तो समझो अभी देवी देवता के काफी मंत्र है, वो तो ठीक है, बट अभी समझो सम्यक दृष्टि भी नहीं खोना है और इसमें से निकलना भी है, तो मैं इसमें एक बात बताना चाहूंगी, जितने भी मंत्र हैं सबसे पावरफुल कोई मंत्र है, नौकार मंत्र से बढ़ करके कोई मंत्र ही नहीं है। और सारी देवी देवताएं नौकार मंत्र की जो साधना करेंगे, कहते हैं टोटल 70 करोड़ देवता उनकी सेवा करते हैं जो नौकार मंत्र की और लोगों की साधना करते हैं। तो पहली बात तो हमारी इतनी आस्था बोलनी चाहिए कि इससे पावरफुल दूसरा मंत्र कोई हो ही नहीं सकता। ट्रू। तो समझ जी, नौकार मंत्र और लोगस की साधना कैसे करने का? ठीक है गिरीश भाई, इसका बता देंगे व्यवस्थित। ओके, हाँ थैंक यू। ठीक है। कृतज्ञस्मि वंदामि नमः स्वामी। वंदामि नमः स्वामी। अभी आपका तबीयत अच्छा है नहीं? आपको फीवर था? नहीं, कौन बोल दिया मुझे फीवर था? नहीं, 103 डिग्री टेम्परेचर था पीछे, आपने अच्छा हो गया। वो स्टोरी था महाप्रज्ञा जी का, उनका। अच्छा। नहीं स्टोरी नहीं, वो कई साल पहले की बात बताइए, अभी नहीं गिरीश भाई, अभी ठीक है बिल्कुल। अच्छा एक्सपीरियंस, सॉरी, स्टोरी निकल गया, आई एम सॉरी। अच्छा। वंदामि नमः स्वामी शमी जी। वंदामि नमः स्वामी शमी जी। हाँ, और पक्की का खमत खामना। हाँ खमत खामना। हाँ, सबको खमत खामना, कुछ जानते अजानते कुछ बोलने आया हो तो या खमत खामना। हाँ वंदामि मीटिंग एंड। हाँ ठीक।